Namaskar, myself Suchitra Chaudhary from SPC Government College Ajmer, Department of Chemistry. BSc पार्ट सेकंड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट न्यू यूनिट एसिड एंड बेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेसिस चैप्टर के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें अचीव करने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस को हम यह स्टडी करेंगे। एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड पीरियडिक वेरिएशंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया जाएगा। There are several theories to define the classify acid and bases that include Arrhenius theory, Bronsted-Lowry acid-base concept, Lux-Flood acid-base theory, Lewis acid-base concept, and solvent system concept. So we have studied here these 5 theories for acid-base concept. Then the strength of acid and bases can be determined by measuring pH values of solution. So we discuss about the what is the strength of acid and bases. On the basis of strength they can classify it into two classes as strong acid, weak acid, or we can say strong base, weak base, etc. So we will discuss all these in the further study. Every theory of acid and bases shows some advantage and some limitations. तो सभी थ्योरीज को पढ़ने के बाद में हम उसका क्या एडवांटेज है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसकी वजह से नेक्स्ट थ्योरी को क्यों स्टडी किया गया, इन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ ईच थ्योरी ए न्यू थ्योरी वाज प्रपोज्ड विच वाज ऑब्जर्व टू बी मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो किसी एक थ्योरी की ड्रॉबैक या उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए न्यू थ्योरी प्रपोज की गई जो उसको उसके प्रीवियस थ्योरी के कंपेरिजन में एडवांस थ्योरी होती है। दिस यूनिट विल थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड बेसिस, देयर ड्रॉबैक्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस about the general concept of acid and basis, or we can say what are acid and what are the common properties of acid we should discuss here. In general, acids and bases can be classified on the basis of their properties. The basic concept of acid and bases can be summarized as follows. What are acids and what are the properties of all the acid? Common property we can say these are: they are sour in taste, वे स्वाद में खट्टे होते हैं. They react with some metals and produce hydrogen. Any acid when reacts with metal it produces hydrogen gases. We can take here other metals, sodium, potassium, calcium, magnesium, or another acids, sulfuric acid, nitric acid. The byproduct will always hydrogen gas. They react with carbonate and bicarbonate and produce carbon dioxide. Solution of acids in water conduct electricity and they change the color of litmus from blue to red. This is the very common property, or we can identify or recognize the given solution is acid or base on the litmus test. It is known as litmus test. All the acids change the litmus paper blue to red, means blue litmus paper when we dip in the acid solution it changes to red in color. And for bases just opposite, bases changes litmus from red to blue. So we can differentiate from this litmus test either it is acid or it is base. What are the common properties of bases? So we can say they have bitter taste. Acids are sour in taste, bases are bitter taste, कड़वे होते हैं. They change color of litmus from red to blue. This is litmus test. We discussed previous slide. It differentiate between acid and bases. They are slippery in nature
aqueous base solution conduct electricity. Then we discuss about the theories of acid and bases. The different theories to define acid and bases are discussed along with their advantage and drawbacks in this section. We have to discuss 5 theories in this unit. First of all, we will study about the Arrhenius theory. Arrhenius theory, we can say this water system concept was given in 1884. In 1884, Swedish chemist Arrhenius proposed the first definition of acid and bases. एसिड और बेस के लिए जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो आरएनएस के द्वारा ही दी गई थी, और आरएनएस ने क्या डेफिनेशन दी थी? एसिड्स आर सब्सटेंस विच आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस HN और H3O ion, or we can say hydronium ion, and bases as the substance that ionize in water to produce hydroxyl ions. अर्थात उन्होंने बताया कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में आयनाइज करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, तो वो H आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं. एंड बेसिस जो बेस होते हैं वो आयनाइज होने पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं. इन जनरल यदि हम देखें HA कोई एसिड है तो इसका जब हम वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट विल बी डिसोशिएट्स इनटू H पॉजिटिव आयन एंड A नेगेटिव आयन. That means it gives H ion, therefore it is acid according to Arrhenius theory. Simply कोई बेस हम लेते हैं BOH, तो it will be dissociate in B positive ion and hydroxyl negative ion. It gives hydroxyl ion, that means it is basic in nature. The hydrogen ion produced is highly reactive, so they do not exist in water freely and always associated with a water molecule to form H3O, aqueous और हाइड्रोनियम आयन. इसलिए कुछ बुक्स में आप यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटॉन H आयन देते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होगा H3O आयन. एक्चुअल में डिसोशिएट होने पर वो H आयन ही प्रोड्यूस करते हैं, पर ये H आयन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, और ये डिसोशिएशन चूंकि वाटर सॉल्यूशन में होता है तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये H3O प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. That is have strong tendency to get hydrated. That means it has strong tendency to get hydrated. Hence Arrhenius are called as proton donor. तो इस तरह से हम आरएनएस एसिड्स को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनर्स होते हैं, या हाइड्रोनियम आयन डोनर्स होते हैं. सेम थिंग है, हम किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं. तो वी कैन से बाय दिस इक्वेशन HX any acid in water solution, that means plus H2O, तो it will give H3O plus or hydronium ion or X negative ion. The proton in aqueous solution is generally represented as H positive aqueous. It is now known that almost all the ions are hydrated to more or less extent, and it is customary to put aqueous after each ion. What is hydronium ion? Hydronium ion अपने आप में नया कंसेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. Unknown to Arrhenius, free H ion do not exist in water. जैसा कि हमने बताया कि फ्री H ion जो होता है वो वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव आयन. तो दे कैवलेंटली रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. तो ये H ion जो एसिड के द्वारा हमें मिला है, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है. वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देता है, क्योंकि प्रोटॉन की H प्लस मीन्स उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है. H पॉजिटिव मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्ट लेता है. चूंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट टाइप बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेट होता है और H3O प्लस आयन बनता है. दिस न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिंस बोथ न्यू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स. Hydronium is the name for H3O plus and is often times abbreviated as H plus aqueous. H plus aqueous और H3O plus सेम थिंग है, क्योंकि H plus वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O plus बनाते हैं. तो दे बोथ मीन द सेम थिंग. तो
तो ये दोनों ही सेम थिंग है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप, और इस तरह से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक एसिड? शॉर्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बाकी हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज 100% एंड वीक वंस डू नॉट। तो जो भी एसिड या बेस 100% आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कहते हैं, और वीक जो होता है उसका आयनाइजेशन कम होता है। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट? बाय एन इक्वेशन, इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ए सिंगल एरो इज यूज टू रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है और H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन के अंदर डिसोशिएट हो रहे हैं। डबल एरोज इक्विलिब्रियम आर यूज टू रिप्रेजेंट वीक एसिड। वीक एसिड जो होता है उसको हम डबल एरो के द्वारा शो करते हैं, अर्थात रिएक्शन फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। So we can differentiate by the reaction method by putting the different types of arrows, either it is strong acid or weak acid. According to Arrhenius, is water an acid or base? Generally ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार वाटर एसिड है या बेस है। तो हम देखते हैं वाटर का जब डिसोसिएशन करते हैं तो हमें HN भी मिलता है, OHN भी मिलते हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में इक्वल मात्रा में मिलेंगे। दैट मीन्स ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। तो नाइदर ही कॉल्ड इट न्यूट्रल, दैट मीन्स वाटर इज न्यूट्रल। ना तो ये एसिडिक है, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड। We can understood by this diagram also. HCl is an acid because it gives HN in water. Similarly, NaOH is base, it yields हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। बीकर के अंदर वाटर रखा हुआ है, यदि हम एसिड डालते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हमें देखने को मिलते हैं, और यदि हम बेस डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर मिलते हैं। ये हमें इक्वेशन के द्वारा हम शो कर सकते हैं। फिर सब एग्जाम्पल्स फॉर आर्हेनियस एंड acid and bases are given here. Arrhenius acids commonly hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, carbonic acid, acetic acid etc. And arrhenius base यदि हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड etc. Every hydrogen compound cannot be regarded as an acid. हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं जिनमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है, पर ये डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप HN प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इनको हम एसिड के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मीथेन इज नॉट एन एसिड। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? OH देखने को मिल रहा है। मेथेनॉल, एथेनॉल एटसेट्रा हैव OH ग्रुप्स बट दे आर नॉट बेसिस। They must generate HN or OHN in aqueous solution in order to define as acid or base. यदि हमें फॉर्मूले में H या OS दिख रहा है तो उससे हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एसिड या बेस है। एसिड या बेस हम उसके डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप हमें कौन सा आयन मिल रहा है उसके आधार पर हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो सम एसिड्स एंड बेसिस आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन एंड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिज। जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कहते हैं। अदर्स आर डिसोसिएटेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन सॉल्यूशन एंड आर टर्म्ड वीक एसिड एंड बेसिज। और जो लिमिटेड एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं उसको हम वीक एसिड और वीक बेस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो हमने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा। बेसिक कंसेप्ट उसका यही है कि जो भी सब्सटेंसेस उसके वाटर सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर HN देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, और जो डिसोशिएट होकर OHN देते हैं उसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ये हमारी बेसिक आर्हेनियस थ्योरी थी। तो इस थ्योरी से एप्लीकेशन और एडवांटेज ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है, कि उस थ्योरी से हमें क्या एडवांटेज मिला इस थ्योरी के जानने से। तो दिस थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन some points we will discuss here. First of all, the properties of acid and bases in aqueous medium. एसिड और बेस की एक्वस मीडियम में प्रॉपर्टीज को इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं
उनके एक्वा सॉल्यूशन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हम किसको लेंगे? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्थात पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, उनके जो ऑक्साइड्स हैं आर एसिडिक इन नेचर सिंस दे गिव HN इन वाटर। यदि हम कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे CO2 को H2 के साथ रिएक्शन कराया H2CO3 बनता है, N2O5 को वाटर के साथ रिएक्शन कराया HNO3 बनता है, दे गिव HN इन वाटर, तो वाटर में जब इनका डिसोसिएशन होगा तो वे HN देते हैं। तो ये एसिडिक इन नेचर अर्थात नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये हम इस थ्योरी से पता लगा सकते हैं। इसी तरह से aqueous solution of metallic oxides and the compounds like ammonia, N2H4, ammonium hydroxide, etc. are basic since these substances give hydroxyl ion in aqueous solution. यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे लेते हैं, these were नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और यदि हम मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं उसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर हमें OH आयन प्राप्त होता है, अर्थात ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये हम आर्गेनिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड, अमोनिया, N2H4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये भी बेसिक इन नेचर हैं, ये हम इस थ्योरी के द्वारा बता सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को भी हम आर्गेनिक थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Strength of RNase acid and RNase bases can be expressed quantitatively in terms of ionization or dissociation constant of acid and base. इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसके द्वारा हम उसकी स्ट्रेंथ को भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कोई इक्वेशन लेते हैं HA=H पॉजिटिव प्लस A निगेटिव और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KA कैलकुलेट करें तो डिसोसिएशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन से हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम इसकी स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बाय रिएक्शन विथ बेस, इसके द्वारा हम न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी हमने आर्गेनिक थ्योरी के द्वारा ही दिया था। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज टर्म्ड न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात जब किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस कंसेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन H आयन एंड OH आयन और हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन करके H2O बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज है, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इन मैनी रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज ऑफ प्रोटॉन आयंस दैट बिकम अवेलेबल फ्रॉम द एसिड्स इन एक्वस मीडियम। तो इसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि उसमें जो H आयन प्रोड्यूस होता है वो अवेलेबल होता है कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए। There are some limitations also for RNase concept. What are the limitations? First of all, for the acidic or basic property, presence of water is absolutely necessary. अर्थात इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि यहाँ पे हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर उसका वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वाटर मस्ट होता है कि वाटर की प्रेजेंस में ही उसका डिसोसिएशन होता है। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड शैल नॉट एक्ट एज एन एसिड, यदि हम HCl को ड्राई ले सब्सटेंस तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। HCl इज रिगार्डेड एज एन एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर एंड नॉट इन अदर सॉल्वेंट, केवल वाटर में डिजोल्व करने पर ही वो एसिडिक नेचर को शो करेगा। The concept does not explain acidic and basic character of substance in non-aqueous solvent, अर्थात नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक जो हम कह सकते हैं आर्गेनिक थ्योरी की यही है कि उसको किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक है ये कैरेक्टर पता करने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है।
The neutralization process is limited to those reactions which can occur in aqueous solution only, although reactions involving salt formation do occur in the absence of solvent. It cannot explain acidic character of certain salts such as aluminum chloride in aqueous solution. इसके अतिरिक्त कुछ salts हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके भी एसिडिक कैरेक्टर को ये aqueous solution में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. An artificial explanation is required to explain the basic nature of ammonia and metallic oxide and acidic nature of non-metal oxides. इसके लिए भी artificial explanation ही require होता है कि हम अमोनिया का बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करें या मेटेलिक ऑक्साइड और अमोनिया के बेसिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और इसके अलावा नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी आर्टिफिशियल एक्सप्लेनेशन चाहिए होते हैं. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी आरएनएस कंसेप्ट की, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कवर करना पड़ा, और वो थ्योरी थी ब्रांस्टन-लॉरी थ्योरी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इतना ही, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन. थैंक्स अगेन.